over here the boxes are remaining. Now we need to find what sign will come in these boxes. So over here 5 is greater, so we'll put 5 sign, which will be a positive sign over here. So it Yes. will be positive 2. Now over here 10 is a greater sign, so it will be negative over here. And over here 12 is a greater sign, it will be a positive over here. So the final So answer the for hello. So the final answer over here will be 2x minus 15y 2x minus plus 6ab. So over here I have written how to do it. Like put the numbers as the value is given. Then we need to compare the signs as we did it with this plus minus, because over here it is given minus. So and now as per the signs we have done, we need to only subtract. I yes, found yes. I found this method very easy, because by doing this method 2 3 times I could do the horizontal way also, like the horizontal way of Yes, yes, subtracting and addition. yes. हाँ, yes, वेरी गुड मेथड. सिंपली अगर हम ऐसे बॉक्स बना करके अगर हम ये सब्सट्रैक्शन या हम एडिशन भी इस तरीके से हम कर सकते हैं. वी कैन डू एडिशन एज वेल एज सब्सट्रैक्शन in this method as discussed by Sayali. So हाँ, so हाँ, so किन्हीं और को कुछ कोई मेथड कोई बताना चाहते हैं, अगर किन्हीं को anybody know any new method, then they can also discuss. Put your name in chat box. Otherwise, I will start today's session. Our chapter is algebraic expression and its operation. In last class, we have discussed about means at first we have discussed about what is expression, what is equation means, and also difference between equation and expression. But our topic is expression means algebraic expression and its operation. So, so then after we discussed about what is term, what is variable, what is constant. Yes. Okay, no problem. Yes. So the matter discussed by Siali is very. My voice is low. I think my voice is not low. हाँ, my voice is not low because मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वॉइस के इंटेंसिटी के साथ वो 3 डॉट जो होता है ना वो भी फ्लक्चुएट करता है, तो इससे मैं समझ पाता हूँ कि मेरी वॉइस की इंटेंसिटी क्या है. अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ है तो आप अपने थोड़ा सा आप अपना वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं. हाँ, सो हम पिछले क्लास में देखे थे व्हाट इज मींस, इस चैप्टर में देखे थे व्हाट इज एक्सप्रेशन, what is algebraic expression, what is algebraic equation, and what is constant, what is variable, what is coefficient. Then we studied about the terms. So addition and subtraction separates the term, and multiplication and division does not separate the term, as we discussed earlier. So terms, we have classified terms into 2 types, like term and unlike term. Like term and unlike term. Then after we study about types of algebraic expression, that is monomial, binomial, trinomial, and polynomial. And then after we have started the operation on algebraic expression, like in arithmetic. In arithmetic, you have studied that addition subtraction means 3 plus 2 is equal to 5, 3 minus 2 is equal to 1, 3 into 2 is equal to 6, 3 divided by 2 is equal to 1.5. So like in arithmetic, all these operations also occur in algebraic expression. So we have discussed about addition, subtraction, and multiplication by 2 methods. First one is vertical method and second one is horizontal method. And just before, Sayali also discussed about
a method of subtraction of algebraic expression, which is quite similar to vertical arrangement, which is quite similar to vertical arrangement. So इन्होंने जो अभी डिस्कस किया वो बॉक्स बना लेने से क्या होता है, थोड़ी सी आसानी होती है इंटरप्रेट करने में कि कहाँ पे प्लस का साइन होगा, कहाँ पे माइनस का साइन होगा. सो आज का जो टॉपिक है, पिछले क्लासेस में हम पढ़ रहे थे, डिस्कस कर रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो आज हम मल्टीप्लीकेशन से कंटिन्यू करेंगे. देन आफ्टर वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चंस हैं, मींस अलजेब्रा जो टॉपिक है इस पे वर्ड प्रॉब्लम के भी ढेर सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं. ओके सॉरी, ओके मैं स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं किया, भूल गया मैं, सॉरी. यस यस, हाँ मैं स्क्रीन प्रेजेंट करना मैं भूल गया और मैं स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा था, सो आपको विजिबल नहीं होगा. सो नाउ हाँ स्क्रीन, वेरी गुड, थैंक यू. वर्ड प्रॉब्लम, हाउ इट कैन बी देयर सम्स. वर्ड प्रॉब्लम के हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. द एडिशन ऑफ मोनोमियल, यस, हम एडिशन ऑफ मोनोमियल, ओके. सो मैं ब्रीफ व्हाइट बोर्ड पे चलता हूं. I am using mobile phone, so if
मेरे एक मिनट मेरे एंड से नेटवर्क का इशू हो गया था। आप मेरी आवाज कितने देर से नहीं सुन पा रहे थे क्या? सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग फ्रॉम व्हेन। ओके ओके। एक्चुअली एक्चुअली आई एम नॉट लिसनिंग। मैं अपने आप मीटिंग से शायद लेफ्ट हो गया था। इट इज 8:11 हुए हैं। आप मेरी आवाज अभी सुन पा रहे हैं क्या? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली? यस। सो मीन्स कितने 2 या 3 मिनट 4 मिनट कितने देर से आप मेरी आवाज को वॉइस को आप नहीं सुन पा रहे थे, ताकि मैं बैक जाके रिपीट करूं वहां से? यस, वॉइस इज क्लियर। कितने देर से क्लियर नहीं थी? फ्रॉम 5 मिनट। ओके ओके, सॉरी। ओके, सो अब मेरी आवाज आपको क्लियर आ रही होगी, तो मैं फिर से सॉरी, नेटवर्क का इशू हो गया, मैं नहीं देख पाया। सो अगेन आई एम गोइंग टू स्टार्ट। मेरा प्रेजेंटेशन शायद चला गया था। सो माय स्क्रीन इज प्रेजेंटिंग नाउ। माय यस, हाँ, 4-5 मिनट। यस, ओके। सो मुझे when you start the screen session. Okay, okay, okay. Yes. So now my screen is visible and my voice is audible. If yes, then please comment yes in chat box. I will see later. So एक आप में से एक चैट बॉक्स में लिखे थे कि मोनोमियल मोनोमियल का एडिशन हम कैसे करेंगे। सो मोनोमियल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक टर्म होते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इज ओनली वन। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4x लिया। फॉर एग्जाम्पल मैंने 4x लिया एंड this is first algebraic expression and second algebraic expression is 3x and second one is 3x. Both are, which lesson are you teaching now as I absent in the last math lecture? I am teaching right now algebraic expression and its operation. So I think so 4x and 3x, these are two डिफरेंट एक्सप्रेशन। 4x एक अलग एक्सप्रेशन है एंड 3x अलग एक्सप्रेशन है, और हमें इसको क्या करने हैं? ऐड करने हैं। हमें इसको ऐड करने हैं। तो हेयर 4x एंड 3x। तो x क्या है यहाँ पे? वेरिएबल। x इज द वेरिएबल एंड इन बोथ टर्म वेरिएबल इज सेम। मीन्स वेरिएबल क्या है? सेम है। वेरिएबल क्या है? सेम है। एंड वेरिएबल के ऊपर पावर, मीन्स 4x है तो x के ऊपर में पावर 1 है और यहाँ पे भी ऊपर में पावर 1 है। मीन्स x रेज 1 मीन्स पावर ऑफ x, ये भी क्या है? सेम है। तो मैंने ये क्या बताया था? लाइक टर्म का ये क्या होता है? ये प्रॉपर्टी होता है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई कर जाए तो ये क्या हो जाते हैं? लाइक टर्म हो जाते हैं। लाइक टर्म हो जाते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं? इसे सिंपली ऐड कर सकते हैं। देन 4 + 3 = 7 एंड x सिंपली ऐसे रह जाएगा। मीन्स 4 मैंगो + 3 मैंगो आपको ऐड करने हैं। 4 मैंगो + 3 मैंगो = 7 मैंगो। यस, 4 + 3 = 7 मीन्स 4 मैंगो + 3 मैंगो = 7 मैंगो। No, chapter 8 is not complete. Today chapter 8 will be complete. मल्टीप्लीकेशन मीन्स हमारा जो लास्ट टॉपिक है मल्टीप्लीकेशन एंड सम वर्ड प्रॉब्लम के 2-3 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, क्योंकि वह काफी इंपॉर्टेंट है। सो ये क्या हो गया? सिंपली 7x हो गया। अब मैं क्या करता हूं? मैंने क्या किया? 4x + 3x लिया। अब मैं न्यू ड्राइंग पे चलता हूं। न्यू ड्राइंग मैंने लिया।
हाँ, तो फर्स्ट वाले केस में मैंने क्या किया, 4x प्लस 3x लिया। अब इसमें क्या करता हूं, 4x एंड 3y लेता हूं। इस दोनों को हमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। मीन्स लेट अस सपोज 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 ऑक्स। सो काव एक डिफरेंट टाइप का एनिमल है एंड ऑक्स एक डिफरेंट टाइप का एनिमल है। ओके, सो 4 काव एंड 3 ऑक्स मीन्स काव एंड ऑक्स बोथ आर नॉट सेम टाइप ऑफ एनिमल। सो इसी तरह हमने लेट अस सपोज कि काव को मैंने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, समझने के लिए मैं बोल रहा हूं। और एक एक कुछ दूसरा है जिसे मैंने ऑक्स बोला, उसको मैंने वाई बोल दिया। सो अगर अगर 4x क्या है, एक मोनोमियल टर्म है। एंड अगर हम यहाँ पे प्लस का साइन नहीं दिए तो 4x एक मोनोमियल है एंड 3y भी एक मोनोमियल है। और हमें क्या करने हैं, इसको ऐड करने हैं, इसे क्या करने हैं, ऐड करने हैं। सो ऐड करने हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 3y, व्हाट विल बी द आंसर, 4 व्हेन वी ऐड 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y। आंसर चैट बॉक्स में बताएं, जब हम 4x और 3y को ऐड करेंगे तो क्या होगा। सिंस क्या मीन्स 4x एंड 3y बोथ आर अनलाइक टर्म, ये क्या है, अनलाइक टर्म है। लाइक एंड अनलाइक टर्म का मैंने लगभग 1 घंटे में एक सेशन में मैं बताया था और काफी क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे। सो चूंकि ये अनलाइक टर्म है तो हम इसे सिंपली ऐड ये नहीं होगा, ये सिंपली 4x प्लस 3y, ये बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। सो ये एडिशन का, ये मोनोमियल का आपने चैट बॉक्स में पूछा, मैंने बता दिया। सो हम लोग देख रहे थे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इससे पहले हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन भी लास्ट क्लास में हम वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लीकेशन के एक क्वेश्चन शायद किए थे एंड हॉरिजॉन्टल मेथड से क्वेश्चन नहीं किए थे। तो अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। नो वी कैन नॉट डू बिकॉज इट इज नॉट, हाँ यस वेरी गुड, 4x प्लस 3y, हाँ आपने चैट बॉक्स में लिखे भी हैं 4x प्लस 3y, वेरी गुड। सो अभी मैं मल्टीप्लीकेशन पे प्रोसीड करता हूं और मल्टीप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देन वर्ड प्रॉब्लम के 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होंगे वो आप सॉल्व करिएगा। फिर आखिरी में अगर 5 मिनट का टाइम बचेगा तो फिर सयाली ने जो मैटर डिस्कस की उसको मैं फिर से मैं बताऊंगा। सो न्यू ड्राइंग पे चला मैं, यस। सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अर्थमेटिक मीन्स आपने जो, 1 मिनट सॉरी, मीन्स 3 into 5 एंड A into B, ये क्या है, ये अलजेब्रा जो अभी हम पढ़ रहे हैं, व्हाट, यस। सो अलजेब्रा में मैंने आपको स्टार्टिंग से ही इस चैप्टर में क्या बता रहा हूं, अगर A और B लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा, A into B। जैसे अर्थमेटिक में 3 into 5 के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन दिया रहता है, उसी तरह अलजेब्रा में क्या होता है, अगर 2 वेरिएबल एक साथ लिखे रहते हैं तो उसके बीच में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है। अगर एक्स वाई एक साथ लिखा है तो ये क्या होगा, x into y, x into y, x into y। सो ये मैं काफी स्टार्टिंग से ही ये हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे। सो अभी हम देख रहे हैं एक 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 हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं वर्टिकल मेथड से मल्टीप्लीकेशन करने का, और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड से मल्टीप्लीकेशन करने का। सो लेट अस सपोज कि मैंने 3x प्लस 4y 5x प्लस
7y। ये एक मैंने, देर आर टू algebraic expression. First one is 3x plus 4y and second algebraic expression is 5x plus 7y, and we have to multiply both the algebraic expression, means we have to multiply 3x plus 4y into 5x plus 7y. इसे हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। तो मल्टीप्लीकेशन का मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले लेट अस सपोज अगर मैं ये 5x को मैं कंसीडर किया, 5x को मैं कंसीडर किया, तो 5 के ऊपर में क्या है, 3 है, 5 के ऊपर में क्या है, 3। सो 5x इंटू 3x, इसको हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 15 एंड x इंटू एक्स, अगर x को हम 2 बार गुना करेंगे तो 15 इंटू एक्स ऐसा हो जाएगा। सो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x इंटू एक्स, जैसे 2 इंटू 2 को आप क्या लिखते हो, 2 टू द पावर 2, 2 रेज 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 2 रेज 2, लाइक दैट। 15 इंटू एक्स, इसे हम क्या लिखेंगे, 15 इंटू एक्स रेज 2 मीन्स 15 इंटू एक्स स्क्वायर। सो हमारे पास क्या आ गया, 5 इंटू 3x को मैं जब मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे हमारा क्या आंसर आ गया, 15x स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया हमारा आंसर, 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 5x, तो 5x को हमने 3x से मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद हम कहाँ पे प्रोसीड करेंगे, 5 को ऊपर में जो है 4, 3 से हमने कर दिया, 3 डन एंड 4y। अब हम 4y को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 5x इंटू 4y इज इक्वल टू 5 इंटू 4 इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है तो 5 इंटू 4 सिंपली हम कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20। एंड अब क्या बचा हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, x और y, x y बच गए। तो x एंड y बोथ आर अनलाइक टर्म। ओके, सो क्या करेंगे, 20 इंटू एक्स इंटू वाई सिंपली हम लिख देंगे। जैसे वहां पे क्या था, इससे पहले सिर्फ x इंटू एक्स था, तो उसे हमने क्या किया, x रेज टू, x टू दी पावर 2, बट यहाँ पे 5x इंटू 4y है। सो जैसे मल्टीप्लीकेशन में क्या किए थे, 3 काव प्लस 4 ऑक्स को एडिशन करके सिर्फ यही हमें लिखना पड़ा। इसी तरह मल्टीप्लीकेशन में भी 5x इंटू 4y, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 एंड x और y सिंपली ऐसे ही मल्टीप्लाई के फॉर्म में रह जाएगा। सो हमारा क्या आंसर आया, 20xy मीन्स प्लस 5y प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस 20xy, प्लस 20xy। यस, वेरी गुड, 20xy। हाँ, आपने चैट बॉक्स में 20xy भी लिखे हैं, वेरी गुड। सो हमारा क्या आंसर आ गया, 20xy। मैं यहाँ पे 20xy से इरेज करके लिखता हूं। ये आप लोग प्रोसेस थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये क्या आया, 20xy, 20xy। अब हम क्या करेंगे, 5x को 3x एंड 4y, 5x को मैंने क्या किया, 3x एंड 4y, इससे हम मल्टीप्लाई कर दिया, किसको, 5x को। तो अब क्या बचा है, 7y बचा हुआ है। 7y को 3x एंड 4y से अब मल्टीप्लाई करना है हमें। सो 7y इंटू 3x, 7y इंटू 3x अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21, 7 इंटू 3 इज इक्वल टू 21। एंड जैसे कि 5x इंटू 4y के केस में क्या हुआ, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20 एंड वेरिएबल क्या हो गया, ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में रह गया। सो सेम उसी तरह यहां पर भी
3 into 7 is equal to 21 and x into y. So 21 into x y. तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x और y. यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, x y. एंड 21 क्या है, कांस्टेंट. 21 इज द कांस्टेंट एंड एक्स वाई इज द वेरिएबल. एक्स वाई इज द वेरिएबल. सो और यहाँ पे क्या है, 20xy. 20xy यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, तो हम इसे इसके नीचे में बॉटम में लिखेंगे. सो हमारा क्या आया, 7y इंटू 3x इज इक्वल टू 21xy. ये हमारा आंसर आया. सो मैं इसे इरेज करके 21xy यहाँ पे मैं लिखता हूं. 21xy 20x के नीचे में मैं लिखता हूं 21xy मैं लिख दिया. अब क्या बचा, 7y को 3x से, 7y को 3x से मैंने मल्टीप्लीकेशन करके ये लिखा. तो अब हमारे पास क्या बचा, 7y इंटू 4y. 7y इंटू 4y मीन 7y के ऊपर में 4y है, उसको हम अभी मल्टीप्लाई करेंगे. सो 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28. 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 एंड y इंटू y. y इंटू y मीन्स 2y. जैसे 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मीन्स 2 रेज 2 मैंने लिखा. इसी तरह y इंटू y इज इक्वल टू y स्क्वायर. सो 28 और फिर क्या है यहाँ पे y इंटू y. सो y इंटू y क्या हो जाएगा यहाँ पे, y रेज टू पावर रेज 2 मीन्स 28y स्क्वायर. 28y टू द पावर 2. सो हमारे पास क्या आया, 7y प्लस 4y मीन्स 7y इंटू 4y इज इक्वल टू 28y स्क्वायर. 28y स्क्वायर. इसे हम क्या करेंगे, 21xy के राइट साइड में लिखेंगे. 21xy के राइट साइड में लिखेंगे. क्या आया था, 7y इंटू 4y 28y स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे, इसे सिंपली हम ऐड कर देंगे. सिंपली हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. तो यहाँ पे मैं एडिशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का यहाँ पे एडिशन का भी कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे. यस वेरी गुड. 28y स्क्वायर. यस गुड. सो यहाँ पे एडिशन का कॉन्सेप्ट आएगा मीन्स ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, इन दोनों को क्या करने हैं, ऐड करने हैं. इन दोनों को क्या करने हैं, ऐड करने हैं. तो जिन लोगों को एडिशन में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो ऐड करेंगे तो वो कंफ्यूजन भी धीरे धीरे क्लियर होते जाएगा. सो हाँ. सो यहाँ पे 15x स्क्वायर मीन्स 15 है और यहाँ पे 0 है मीन्स कुछ नहीं है तो 0 है. तो 15x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा. फिर यहाँ पे क्या है, 20xy एंड 21xy. 20xy एंड 21xy वेरिएबल सेम है मीन्स xy इसमें भी है, xy इसमें भी है. मीन्स 20 मैंगो प्लस 21 मैंगो मीन्स 20 प्लस 21 इज इक्वल टू 41 इन मीन्स 41xy. और उसके बाद हमारे पास क्या बच गए, 28y स्क्वायर. तो इसके ऊपर में तो कुछ है नहीं, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, 28y स्क्वायर. 28y स्क्वायर. 28y स्क्वायर. सो 3x प्लस 4y इंटू 5x प्लस 4y. इसको हम अभी हमने जो डिस्कस किया, तो इसे हम वर्टिकल मेथड से कैसे ऐड करेंगे उसके बारे में हम लोग डिस्कशन किए. मीन्स वर्टिकल मेथड. दिस वन इज वर्टिकल मेथड. सो होप सारे लोगों को कुछ समझ में आया होगा. मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये 3x प्लस 4y ये क्या है, बाइनोमियल है. बाइनोमियल. बोथ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर बाइनोमियल. So yes, so I think I have dot. आपको डॉट है क्या, निधि? क्या आप कुछ नहीं समझ पाए क्या? मैं हॉरिजॉन्टल मेथड, why you don't multiply the 5x and 7y, you add
5x एंड 7y को मल्टीप्लाई आपने क्यों किया और ऐड क्यों कर दिया? तो हाँ, आपको मैं बताता हूं, आप कुछ ऐसा समझ गए। 5x एंड 7y, 5x, एक मिनट, 5x 7y, एक मिनट। आपने पूछा कि 5x और ये 7y, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? इन दोनों को हम मल्टीप्लाई क्यों नहीं किए? क्योंकि 5x और 7y, हम 5x प्लस 7y, ये हमारा क्या है? दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसको हमें मल्टीप्लाई करने हैं, 3x प्लस 4y से मल्टीप्लाई करने हैं। मीन्स ये पहला एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है। इन दोनों एक्सप्रेशन के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है। सो 5x एंड 7y को या 3x प्लस 4y को हम सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर अभी भी आप यह नहीं समझ पाए तो अभी हम हॉरिजॉन्टल मेथड हम डिस्कस करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल मेथड का डिस्कशन जब एंड होगा, हम आपके सुविधा के लिए सेम एक्सप्रेशन लेते हैं हॉरिजॉन्टल मेथड में भी। तो हॉरिजॉन्टल मेथड का जब हम प्रोसेस करेंगे तो शायद आपको ये चीज और भी क्लियर हो जाएगा कि 5x एंड 7y को मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, या 3x एंड 4y को मैंने क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। सो इसके अलावा कोई आपके क्वेश्चंस हैं? ओके, सो पहले मैं हॉरिजॉन्टल मेथड कर देता हूं डिस्कस, इसके बाद आपको हॉरिजॉन्टल मेथड डिस्कशन के बाद शायद आपके ढेर सारे क्वेरीज अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो हमारे क्या थे? मीन्स दो एक्सप्रेशन थे। फर्स्ट एक्सप्रेशन वाज पहला एक्सप्रेशन क्या था? 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, दिस वन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन। और इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करने हैं? 5x प्लस 7y। साथ साथ आप लोग अपने नोटबुक में भी लिखते जाइएगा, क्योंकि अगर दूसरे ड्राइंग पे जाना पड़ेगा तो ये आपको विजिबल नहीं होगा। इसे हमें मल्टीप्लाई करने हैं 5x प्लस 7y। सो आपने ये जैसे 5 इंटू 3, तो ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट का मीनिंग एक तरह से ये क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन का काम करती है ब्रैकेट। ये ब्रैकेट किस चीज का काम करती है? मल्टीप्लीकेशन का। बॉड मास आप लोग जब पढ़ रहे होंगे, BODMAS, बॉड मास, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो आप लोग यह देखे होंगे ये ब्रैकेट जो है ये मल्टीप्लीकेशन का काम करती है। सो यहाँ पे हमारा क्या है? फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 3x and 3x plus 4y and second expression is 5x plus 7y। हमें इस दोनों को क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं। हमें क्या करने हैं? मल्टीप्लाई करने हैं। तो मैं ये इसे मैं मल्टीप्लीकेशन का जो साइन था उसे मैं इरेज कर दिया, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन का काम करती है। थोड़ा मैं अच्छे से अरेंज करके लिखता हूं ताकि आपको समझने में और आसानी हो। एंड 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y, यस। सो अगर 3 है, 3, एक मैं अर्थमेटिक का एग्जांपल ले रहा हूं। 3 कोस्ट है, फिर 1 प्लस 2, ये एक ऐसा लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो हम दो तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं? अंदर वाले को ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, फिर कोस्ट है, फिर कोस्ट के बाहर 3 है, और 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ओके,
3 कोस्ट 1 प्लस 2, तो 1 प्लस 2 को मैं ऐड किया, फिर बाहर में क्या है 3 है, सो 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। दिस इज द मेथड 1। अगर हम इसी को क्या करेंगे, इसे मैं इरेज कर देता हूं। सेम इसी को मैंने क्या किया, पहले क्या किया, 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया। सो 3 इन कोस्ट यहाँ पे है तो 3 कोस्ट 1, तो 3 इंटू 1, एंड फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 इंटू 2। सो 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, सॉरी 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3, सॉरी 3 into 1 is equal to 3 plus 3 into 2 is equal to 6. Then 6 plus 3 is equal to 9. 6 plus 3 is equal to 9. ये आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ये सब आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होंगे, तो ये उन सब के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं, ये उन सब के कॉन्सेप्ट्स पे बेस्ड हैं। सो मैं आपके सुविधा के लिए ये मैं एक छोटा सा डिस्कशन किया। एक इसे मैं इरेज करता हूं। अब मैं हॉरिजॉन्टल मेथड, मल्टीप्लिकेशन का हॉरिजॉन्टल मेथड हम डिस्कस करते हैं। सो हाँ, सो ये क्या है, हमें दिस वन इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड दिस वन इज द सेकेंड एक्सप्रेशन, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकेंड एक्सप्रेशन, एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकेंड एक्सप्रेशन को हमें क्या करने हैं, मल्टीप्लाई करने हैं। हाँ सॉरी, खांसी होती है। हमें क्या करने, फर्स्ट एक्सप्रेशन एंड सेकेंड एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करने हैं। सो इट इज 8। हाँ, सो तो फर्स्ट एक्सप्रेशन के जितने टर्म है, फर्स्ट एक्सप्रेशन के जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होंगे, सेकेंड एक्सप्रेशन के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कितने टर्म है, पहला टर्म ये है और दूसरा टर्म ये है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन में कौन कौन से टर्म है, पहले टर्म 3x है और दूसरा टर्म क्या है, 4y है। ओके, पहले वाले एक्सप्रेशन में दो टर्म है, तो 3x क्या होगा, 3x क्या होगा, 3x 5x से भी मल्टीप्लाई होगा एंड 3x 7y से भी मल्टीप्लाई होगा। सेम सेम इसी तरह 4y जो है, 4y 5x से मल्टीप्लाई होगा एंड 4y 7y से मल्टीप्लाई होगा। सो ये हम क्या करेंगे, ऐसा होगा, इसके लिए हम क्या करें, ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। सो ये क्या है 3x, तो मैंने क्या बोला 3x क्या होगा, इस दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 3x इंटू 5x प्लस 7y, इस दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, 3x का काम खत्म। एंड अब हमारे पास क्या बचा है, 4y, दूसरा टर्म क्या है 4y, मीन्स प्लस 4y, यहाँ पे प्लस 4y। ये 3x है तो 3x के पीछे में प्लस, तो ये आप ऑटोमेटिक समझ रहे हैं, अगर 1 2 3 4 लिखा है तो ये +4 +3, ये बाय डिफॉल्ट ऐसा है, मीन्स दीज आर नेचुरल नंबर। सो अगर 3x लिखा रहे और इसके पीछे में साइन नहीं है तो ये क्या होगा, +3x। होप आप लोग ये जानते होंगे। सो 3x को हमने क्या किया, 5x प्लस 7y से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमें क्या बचे हैं, 4y को प्लस 4y को इस दोनों से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लस, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, क्या करने हैं, प्लस 4y में ज्यों का त्यों एज इट इज लिख दिया। फिर 4y को किससे मल्टीप्लाई करने हैं, 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y, हमें 4y को किससे करने हैं मल्टीप्लाई, 5x प्लस 7y। सो अब क्या हो गया, एक ये हो गया और दूसरा ये हो गया, और बीच में क्या है, एडिशन है, बीच में क्या है, एडिशन है। सो
हम क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लीकेशन के जितने काम है वो करेंगे। सो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हमने क्या किया, 3x प्लस 4y एंड 5x प्लस 7y, दो टर्म्स है हमारे पास। और क्या किए, कोई एक एक्सप्रेशन ले लिए, कोई एक एक्सप्रेशन के दोनों टर्म्स को अलग अलग दूसरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। फिर अब 3x और 5x को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, आप चैट बॉक्स में लिखें, दोनों लिखें, 3x इंटू 5x एंड 3x इंटू 7y, 3x into 5x and 3x into 7y, what will be answer? आप लोग चैट बॉक्स में लिखें, 20 सेकेंड का टाइम दे रहा हूं मैं, 20 सेकेंड। थ्री एक्स को 5x प्लस 7y में आपका चैट बॉक्स देखता हूं। हाँ, 15x, वॉइस इज स्टॉप। मैं बोल नहीं रहा था, मैं आपको 20 सेकेंड का टाइम दिया था मल्टीप्लीकेशन करने का। सो सो 3x इंटू 5x, ये पहले क्या है, 3x इंटू 5x। सो 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15 एंड x इंटू x इज इक्वल टू x इंटू x मीन्स 15x टू द पावर 2। मीन्स जैसे 2 इंटू 2 को हम क्या लिखते हैं, 2 का स्क्वायर लिखते हैं, सेम उसी तरह x इंटू x को मैंने क्या लिखा, x स्क्वायर। सो 3x into 5x is equal to 15x square, 15x square। सो मैं यहाँ पे इरेज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ 3x into 5x की जगह पे 15x square, 15x square, 15x square। अब थोड़ा मैं आपका चैट बॉक्स देख लेता हूँ। हाँ, 15x square 21x, 15 21, वेरी गुड। हाँ, एक आपने तो आंसर भी बोल दिया। आंसर तो वैसे सेम आएगा क्योंकि पिछले इससे पहले वर्टिकल मेथड में सेम क्वेश्चंस हम लिए थे। 15x, वेरी गुड वेरी गुड। 21xy, गुड। 15x स्क्वायर 20, वेरी गुड। 21xy, 15x स्क्वायर 20, वेरी गुड। यस, फाइनल आंसर इज दिस वन, गुड। सो ये क्या हो गया, अब आपने बोला अब क्या है, 3x और 3x इंटू 7y को अब मल्टीप्लाई करना है, तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 21 एंड x इंटू वाई एक्स वाई, ये सिंपली ऐसा हो गया। तो 3x को मैंने इस दोनों से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब क्या बचे हमारे पास, 4x। इसी तरह 4x को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे और 4y को 7y से हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएं कि पहला 4y इंटू 5x ये क्या होगा, और दूसरा 4y इंटू 7y ये क्या होगा। 4y इंटू 5x एंड सेकेंड इज 4y इंटू 7y। आप लोग चैट बॉक्स में ये बताएं, 4y इंटू 5x एंड 4y इंटू 7y। अब आपका चैट बॉक्स में देखता हूं। हाँ, 20xy और 20, एक मिनट स्टार्टिंग से देखता हूं क्या था। एक मिनट, 4 को हम क्या कर रहे थे, 5x और 7y, 20xy और 28y स्क्वायर। हाँ, सॉरी, 20xy एंड 28y स्क्वायर, ये जिसका जिसका आंसर है मैं देख लेता हूँ। 20xy आपने बोला 28, वेरी गुड। 20xy 24, 28 होगा। आप निधि आपने 24 लिख दिए हैं, वहां पे 28 होगा। 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28। 20xy 24y स्क्वायर 28।
यस यस 28, हाँ। सो जैसा कि आपने बताया 4y इंटू 5x, 4 5 जा 20 एंड xy both are unlike terms, so 20xy, and 4 7 जा 28 and y into y is equal to y square। तो हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 4 into 5, 20xy, तो +20xy मैंने लिख दिया। देन आफ्टर 4y और 7y, 4y into 7y, दिस वन इज 28y स्क्वायर, 28y स्क्वायर। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बताया, जैसे 28 लिखा है तो इसके पीछे में कुछ साइन नहीं दिया है, तो इसे हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। तो इसके पीछे क्या लिख देंगे, पॉजिटिव, प्लस का साइन हम दे देंगे। तो हमारे पास इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ऐसा कुछ आया 15x स्क्वायर 21xy 20xy प्लस 28y स्क्वायर। अब हमारा काम है कि अगर ये हमारे पास अभी क्या है, चार डिफरेंट टर्म है, चार टर्म है, क्योंकि प्लस यहाँ पे है, प्लस यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। सो आपको मैंने दूसरे क्लास में बताया कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन सेपरेट्स द टर्म। सो देर आर थ्री plus sign, so there are four terms. First one is 15x squared, second one is 21xy, third one is 20xy, and fourth one is 28y square, fourth one is 28y square। तो आप ये ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि एक्स वाई एंड एक्स वाई दोनों क्या है, सेम है। वेरिएबल यहाँ पे क्या है, सेम है, मीन्स 21xy and 20xy both are like term, so we can add them, we can subtract them। तो यहाँ पे प्लस 21xy है और प्लस 20xy है, तो दोनों में क्या है, एडिशन है। सो हम सिंपली क्या करेंगे, ऐड करेंगे। सो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 + 21 इज इक्वल टू 41 एंड xy विल रिमेन सेम। इससे पहले क्या है 15x स्क्वायर, तो 15 के पीछे में वेरिएबल क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आप कहीं पे खोज लीजिए, यहाँ पे नहीं मिल रहा है इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर है। तो 15x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, 15x स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा। और उसके बाद क्या, 15x स्क्वायर डन, 21x स्क्वायर, 21xy एंड 20xy, इस दोनों को हम ऐड कर दिए एंड द तो हमारे पास क्या बचे हैं, 28y स्क्वायर। तो हम 28y स्क्वायर को एज इट इज हम लिख देंगे। सो दिस वन इज द फाइनल आंसर, 15x स्क्वायर प्लस 41xy प्लस 28y स्क्वायर। इसे हम पिछले वाले वर्टिकल मेथड से मैच करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, 15x स्क्वायर प्लस 14xy प्लस 28xy स्क्वायर। तो मैं एक आपका एक क्वेश्चन था, उसका मैं एक शॉर्ट में मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर में दे रहा हूं कि आपने पूछा था कि why we don't multiply 5x and 7y। तो 5x and 7y क्या है, एडिशन, दोनों के बीच में क्या है, एडिशन है। 5x and 7y दोनों के बीच में क्या है, एडिशन। सो वी कैन ओनली ऐड देम, okay, so sorry, so we can only add them। इसीलिए हम उस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। सो 5x और 7y के बीच में क्या है, प्लस का ऑपरेशन ही काम करेगी। इसी तरह 3x प्लस 4y, इस दोनों को हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली ऐड करेंगे। चूंकि दोनों अनलाइक टर्म है, 3x प्लस 4y बोथ आर अनलाइक टर्म, सो इट रिमेन एज इट इज, मीन्स इसे हम ऐड करके या सब्सट्रैक्ट करके और कॉन्साइज नहीं बना सकते हैं। सो होप दिस इज द हॉरिजॉन्टल मेथड एंड प्रीवियस वन वाज वर्टिकल मेथड। तो आप लोग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मेथड आप लोग समझ गए होंगे। मैंने मल्टीप्लीकेशन आज पूरे क्लास में लगभग मल्टीप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया, तो मल्टीप्लीकेशन आप लोग समझ पाए क्या?
तो एक हमारे पास लगभग 10 मिनट का टाइम है, तो एक वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। यस। सो आप लोगों के पास बुक है सामने में क्या? आप लोगों के पास बुक है क्या मैथमेटिक्स का? नो, ओके। सो मैं क्वेश्चंस भी आपको दिखा देता हूं, एक मिनट। अच्छा, मैं क्वेश्चन डिक्टेट कर देता हूं, आप लोग समझ, ऐसे भी मैं एक्सप्लेन ही करूंगा। तो सिंपली मैं एग्जाम्पल का पेज नंबर 69, 59, सॉरी, पेज नंबर 59 का एग्जाम्पल, एक मिनट, 59, 60, पेज नंबर 60 का आपके पास एग्जाम्पल होगा। एग्जाम्पल वर्ड प्रॉब्लम वाला है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। द एक मिनट, हाँ ठीक है, मैं क्वेश्चन डिक्टेट करके आपको बताता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसा लिखा हुआ है। कोई आप अपना एक कोई माइक ऑन करके क्वेश्चन को डिक्टेट कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, एनीबॉडी जिसके पास बुक है क्वेश्चन? Sir, यस। sir, I have the book. हाँ यस, आप क्वेश्चन पढ़ें। Okay, sir. Page number 60, example. The length of a rectangle is 1 centimeter more than the twice its breadth. If the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, find its length. Find its length. Okay. So the length of a rectangle is 1 centimeter more than twice its, एक, हाँ एक मिनट, हाँ। सो क्वेश्चन ये है कि एक क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन ऐसा है कि द लेंथ ऑफ ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, ये क्या है, रेक्टेंगल है, और ये लेंथ है, लेंथ मीन्स लंबाई, एंड दिस वन इज ब्रेथ, दिस वन इज ब्रेथ। सो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। तो लेंथ को मैंने क्या बोला, लेंथ को एल और ब्रेथ को सिंपली मैं बी लिखा, ब्रेथ को बी, लेंथ को शॉर्टकट में एल एंड ब्रेथ को बी। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स मीन्स ये यहाँ पे ये कह रहा है कि सॉरी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स एक रेक्टेंगल है जिसका लेंथ ब्रेथ के दुगुना है, और उसमें हम 1 ऐड करेंगे, तो मीन्स यहाँ पे ये है कि 1 सेंटीमीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। मीन्स ये क्या है, ये लेंथ है, और ये क्या है, ये ब्रेथ है। तो ये जो लेंथ है, लेंथ फॉर एग्जांपल कुछ भी है, तो ये लेंथ बता रहा है कि लेंथ इज ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो लेंथ इज इक्वल टू 2 इंटू बी। अगर फॉर एग्जांपल लेंथ इज इक्वल टू 11 है, और ये न्यूमेरिकल में नहीं बोलता हूं, मीन्स यहाँ पे क्या है, लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ एंड प्लस 1 सेंटीमीटर 1, मीन्स इसमें और एक और हम ऐड करेंगे, 2b plus 1. My net issue is there. Actually, सॉरी, मैं लेफ्ट हो गया था। हाँ, यस। सो
according to the question, the length of a rectangle is 1 centimeter more, means 1 centimeter more. ये 1 को मैं यहां लिखा, and then twice its breadth. तो breadth क्या है? b. b का twice क्या होगा? b का दुगुना 2b. अगर किसी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो twice हो जाएगा. ओके, सो लेंथ क्या है? ब्रेथ का ट्वाइस एंड प्लस 1. सो हमारे पास एक यहां सा एक सिंपल सा रिलेशन आया, लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 1. हमने क्या किया? लेंथ को l माना और ब्रेथ को b. लेंथ को l हमने माना और ब्रेथ को b. Sir, your screen is not visible. Sir, you have stopped the screen sharing. Okay, sorry. Yes, now visible. Now visible. Yes, okay. So हाँ, तो the length is 1 centimeter more than twice its breadth. The length is 1 centimeter more twice its breadth. अगर ब्रेथ हमने यहाँ पे क्या बोला? ब्रेथ को b बोला, तो ब्रेथ में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ट्वाइस. अगर किसी भी क्वांटिटी में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? ट्वाइस. तो लेंथ क्या है? ब्रेथ का ट्वाइस है और प्लस 1. ट्वाइस में प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? लेंथ आ जाएगा इस रेक्टेंगल का. सो मैं बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं. हमारे पास सिंपल सा क्या रिलेशन आया? लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 1. लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 1. 2b प्लस 1. लेंथ इज इक्वल टू 2b प्लस 1. ऐसा आया. बाकी चीजों को मैं इरेज कर रहा हूं. Then if the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, if the perimeter of the rectangle is 50 centimeter, then find its length. So perimeter क्या होता है? perimeter क्या होता है? ये अगर यहां से आप चलना स्टार्ट किए और यहां से चलते चलते फिर यहाँ पे वापस आ गए तो ये टोटल क्या हो गया? पेरीमीटर हो गया. मीन्स यहां से आप चलना स्टार्ट किए तो L मीन्स सॉरी ये B है, कलर चेंज कर लेता हूं. यहां से आप यहां गए तो B कवर किया, फिर यहां से यहां पे आए तो L, देन B, देन L. सो टोटल डिस्टेंस इज, और आप ऐसे भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 2 इंटू L प्लस B जानते होंगे. तो पहले हम B गए, फिर L, देन B, देन L. ओके, सो this one is perimeter of the rectangle. This one is the perimeter of rectangle. और ये क्या दिया हुआ है? ये लेंथ क्या है? 50, 50. This one is 50. So अब मैं इसे इरेज कर दे रहा हूं. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. b प्लस एल प्लस b प्लस एल इज इक्वल टू 50. ये हमारे पास दो इक्वेशन आए. पहला हमारा ये दिया हुआ है और दूसरा हम ये अभी हम निकाले जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है. तो L इज इक्वल टू 2b प्लस 1. तो L यहाँ पे है और L यहाँ पे है, तो L के जगह पे क्या लिखेंगे? 2b प्लस 1. तो b को एज इट इज रहने देंगे. L के जगह पे 2b प्लस 1, L के जगह पे 2b प्लस 1 लिख दिया. फिर b के जगह पे b आएगा. देन अगेन L के जगह पे क्या करेंगे? 2b प्लस 1 लिख दिया. L के जगह पे इज इक्वल टू 50. मैंने क्या किया? L इज इक्वल टू 2b प्लस 1 है, मीन्स L इज इक्वल टू समथिंग, देन वी कैन राइट L इज इक्वल टू, मीन्स ये को हम लिख सकते हैं. सो b, 2b, b and 2b, these all are like terms, so we can add them. So b plus 2b plus b plus 2b, 2 to 4 plus 5 plus 1b, 6b. 6b plus 1 plus 1, 2 is equal to 50. 6b plus 2 is equal to 50. So LHS में क्या है? 6b plus 2 is equal to 50. So अगर 2 को हम जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट आप वेट करें, मैं इस क्लास को एंड कर दे रहा हूं.
तो 2 को हम क्या करेंगे, RHS में हम सेंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, RHS में ये जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। तो 50 - 2 इज इक्वल टू 48। सो 6B इज इक्वल टू 48। सो B इज इक्वल टू 48/6। तो 48/6 इज इक्वल टू 8। सो हमारा ब्रेथ क्या आ गया, ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। एंड यहां से हम लेंथ निकाल लेंगे, बी के जगह पे 8 देंगे, 2 इंटू 8 प्लस 1, 8 2 जा 16 प्लस 1 इज इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर। सो इट इज 9 PM. So I am going to stop my presentation. This sum is from TB. आप, मैं नहीं समझ पाया आपकी बातों को। मैंने लास्ट में एक वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन डिस्कस किया था। अगर टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन मैंने एक डिस्कस किया था, एग्जाम्पल है वो। मैं सिंपली कोई आप फिर से उस क्वेश्चन को एक बार देख सकते हैं, और उसके अलावा एक एग्जाम्पल में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं वर्ड प्रॉब्लम के, और कुछ एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आप एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा और एक्सरसाइज के सारे वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चंस कर लीजिएगा, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अगले चैप्टर्स में या अगले क्लासेस में मिलेंगे ये सब क्वेश्चन। सो आपका ये चैप्टर नंबर 8 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड इट्स ऑपरेशन आज एंड हो गया। So you can left the session. Bye. Good night. Take care. Bye everyone. Bye. Good night. Please left the session. प्राजक्ता विलास सबले, प्लीज लेफ्ट द सेशन। क्लास एंड हो चुका है, सेशन को लेफ्ट कर दें आप।